सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Knowledge is power. Information is liberating. Education is a premise of progress in every society, in every family. Hi friends, I'm Sanskruti Verma. And I am Alankrit Mishra. Welcome back to our favorite show, Just Junior. Just junior. Friends, education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. Yes दी, अच्छी एजुकेशन पाना हम सब का अधिकार है और मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। Very right, Alankrit. An educated person can differentiate between good and evil, right and wrong. Yes दी, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। Yes, Alankrit. Educating its citizens is the foremost responsibility of a society. दी, हम लेकर चले अपने फ्रेंड्स को फिटनेस वर्ल्ड में, जहाँ वो श्वेता दीदी के साथ फिट रहने के और भी तरीके सीख लेंगे। Very right, Alankrit. Physical education encourages a positive body image by emphasizing on being fit and healthy. चलो बुला लेते हैं श्वेता दी, आफरीन और अनविता को। Just junior. Good morning, everyone. Do you know, mindset is what separates best from the rest. So let's begin our session being the best in our mind. Today we will do warm-up by stretching each part of our body. Today we will focus on upper body and arms. First exercise which we will do today is arms pull down. This is very good exercise for your arm strengthening. Second exercise which we will do today is rotating your shoulder forward back. This exercise is a very good exercise for your shoulder muscles including deltoids, rotator cuffs and upper back muscles.
third exercise which we will do today is back arm pulses. This is a very good exercise for your triceps and biceps. Fourth exercise which we will do today is jumping jack forward hand raises. This is an overall mobility exercise. This will enhance your muscle power. As you all know, we always do this exercises in set of 3 to get the best results. Let's cool down. Thank you for staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. Jai Junior, Thank you so much, Shweta Di, Afreen and Anvita. Thank you so much, Shweta Di. Friends, give your body the love it deserves. Yes, my junior friends, keep calm and aerobics on. Bilkul Alankrit. Thank you so much, Shweta Di, Afreen and Anvita. Jai Junior. Students learn the stuff they need to make their own lives and to make society better. अलंकृत, तुम्हें पता है आज हम क्वालिटी एजुकेशन पर बात करने वाले हैं. वाओ दी, अब हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा that without education there is no future. Yes, अलंकृत, education is a must for everyone. Right now, the way we teach often pays a lot of attention to just one small part of how kids learn and grow. A high standard of education provides students with the knowledge, skills and experience required to meet their societal and personal needs. It is often seen as a key driver to one's societal and personal needs. तो इसी टॉपिक पर हम सब बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है. So let's welcome Professor C.V. Sharma, former chairperson of the National Institute of Open Schooling. Let's welcome sir to our show. Thank you. Hello sir. Hello, sir. Please have a seat sir. Thank you. Let's also welcome Mr. Laksh Chhabria. He is the CEO, SR Capital School, Delhi. Welcome to our show, sir. Thank you. Please have a seat. sir. तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म.
Sir, my question to you is, what are the key challenges in providing quality education to all? I believe when you talk of quality education to all, you are referring to school education. Because globally, we don't expect all to go to higher education. So, I'll first answer your question about quality education to all in context of school education. First, quality is not really defined very well, in the sense that there can be various types of learners and every learner would require a different type of education, so quality would differ from person to person, place to place, school to school. Quality education should mean preparing an individual for the job or the life that one expects and wants to do. Supposing somebody wants to be a farmer, so a quality education would be good agriculture education combined with the ability to access sources of knowledge one would require to become a good farmer. Say someone wants to become a dancer, so what would be quality education for that child? Someone who can teach that child good dancing and all the information sources which can help that child become a good dancer. So, quality education will differ from person to person, place to place and discipline to discipline as well. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं एसआर कैपिटल स्कूल दिल्ली के स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? What do you think about the key components of the quality education? The first and most important thing is finance of education. We require good schools, we require good universities, we require good supplies. A good institution would mean good laboratories, good library, good infrastructure in terms of playground, classroom and everything, but also good quality teachers. So, the most important component would be supply of money through which we can train good teachers. It requires money to train an individual. So, we will require money to train individual teachers and also create good schools where we have good laboratories, libraries, playground, because for an all-round development of an individual, a child, you require all these things. So, I think the first and most important thing is financing and then the infrastructure, but I will say the most important is good teachers. You must have very good teachers who understand education and who understand what the assignment in the job is so that the learning outcomes can be met. Friends, can I have the next question please? मेरा सवाल प्रोफेसर शिवी शर्मा जी से है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल क्या कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास से मतलब रखता है. तो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी आयाम हमको जीवन में जरूरत है, जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें हमको काम करने की आवश्यकता है, उन सबको समझने की जरूरत है. तो विद्यालय का काम केवल विषयों को पढ़ाना नहीं होगा. तुम अगर 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस या मैथ्स पढ़ रही हो तो केवल इन विषयों को पढ़ना काम नहीं है और पढ़ाना काम नहीं है. हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं और समाज में रहने की कला सीखना भी जरूरी है. जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षा पहुंचाते हैं, देते हैं, तभी वो होलिस्टिक एजुकेशन होता है. तो मुझे लगता है कि इसकी परिभाषा एक बड़ी परिभाषा होगी, लेकिन संक्षेप में अगर हम बताएं तो ये होगा कि वो सारे आयाम जिसके माध्यम से एक व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति बनता है, एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो वसुधैव कुटुंबकम समझता है, जो ग्लोबल नागरिक है, वैसी शिक्षा को होलिस्टिक एजुकेशन कहेंगे. फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर लक्ष्य सर से है. सर, व्हाट डू यू थिंक स्कूल विल बी लाइक इन फ्यूचर? कोविड के बाद स्कूल का मतलब ही बदल गया है. हमने बहुत ही जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन सीखा और आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग जो कि शिक्षा का भाग होने वाले हैं. स्कूल ऐसे ही रहेंगे. टीचर्स का हो सकता है आगे आने वाले समय में रोबोट्स आ जाएं या फिर रोबोट टीचर्स. अभी हम बहुत सारी जगह देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो न्यूज़ रीडर्स हैं वो भी न्यूज़ को पढ़ पा रहे हैं. ऐसे ही टीचर्स भी हो सकता है रिप्लेस कर दिए जाएं. लेकिन स्कूल का मतलब तो होता है सोशल इंटरेक्शन. स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, अपने पीयर लर्निंग होती है, एक दूसरे से सीखते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है स्कूल का परिप्रेक्ष्य आगे आने वाले 10 से 20 साल में बहुत बदल जाएगा. Friends, can I have the next question please? My question is from Laksh Thabaria sir.
Sir, why do you think it is important to go to school and learn new things? देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन का भी आंसर यही दिया था। स्कूल के अंदर बच्चे सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं, एक दूसरे से दोस्ती बनाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं और जीवन भर की एक बॉन्डिंग बनती है एजुकेशन स्कूल के अंदर। और ये जो दोस्ती होती है पूरे जीवन भर का साथ निभाते हैं। और वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक मैसेज है वो स्कूल के अंदर ही सीखने को मिलता है। तो इसलिए स्कूल का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ये बहुत बदलाव हो गया। अभी तक एजुकेशन के अंदर एक हम इंडस्ट्रियल एज की एजुकेशन पढ़ा रहे थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब जो बच्चे की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम एजुकेशन में काम करेंगे, जो बच्चों की ज़रूरत है, ताकि हम स्किल्ड बच्चों को दे पाएँ। इसलिए सोशल इंटरेक्शन स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। So, sir, I would like to ask you, how does quality education impact a person's future opportunities and success? Education changes lives, and good education changes lives fast. So, it's utmost importance that one gets education, but it's also very important that one gets quality education. Research says that every year of extra education leads to at least 7% of increased income. So, it's very important that one gets quality education. If a child is admitted to a school in class 1 which does not provide good education, the future of the child is already decided and determined. So, it's utmost important that one gets access to good schools, and schools must be good. Every child must get quality education and identical education, because otherwise we have decided already that a child will succeed and another will not exceed. Every child must have level playing field, every child must have quality education, and that is because quality education changes lives. Friends, can we have the next question please? टेक्नोलॉजी का आज की जनरेशन पर क्या इफेक्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है कि तकनीक का हमारे जीवन पर या शिक्षा पर क्या प्रभाव है। हर नए जनरेशन पर तकनीक का प्रभाव पड़ता है और हर 15 साल पर लगभग तकनीक बदल जाती है। अब ये और बात है कि 6 से 8 महीने में तकनीक बदल रही है, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे जीवन पर और शिक्षा पर भी पड़ना है। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ना है? हमारे विद्यालयों के तरीके में बदलाव आएगा। जैसा कि लक्ष्य जी ने अभी बताया कि कोविड के बाद हम ऑनलाइन एजुकेशन करने लगे, ये पहले कभी नहीं किए थे, आज हम वो कर रहे हैं और उसमें दक्षता भी प्राप्त की है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आने वाले समय में पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगा। टीचर हमेशा सेंटर स्टेज रहेगा। टीचर के अराउंड ही नॉलेज है, टीचर के अराउंड ही स्किल्स है, टीचर ही वो धुरी है जिस पर विद्या और शिक्षा आधारित है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग तकनीक आएंगे, टेक्नोलॉजी आएंगे, लेकिन टीचर फिर भी सेंटर स्टेज होगा। आज की जो जनरेशन है वो रील्स की जनरेशन है। आज के बच्चों की जो अटेंशन है वो बहुत कम रह गई है। तो हमारे को एजुकेशन में भी इस तरह से बदलाव करना पड़ेगा ताकि कम समय में हम ज़्यादा बच्चों को सिखा सकें, ताकि जो एक छोटे से कॉन्सेप्ट को भी जो हम पूरा 1 घंटे का पहले लेसन प्लानिंग करते थे उसको हम छोटेपन में, जैसे रील के अंदर 60 सेकंड या 30 सेकंड में बच्चों को हम समझा पाएँ। ऐसे एजुकेशन में भी बदलाव आना शुरू हो गया है और आगे होता रहेगा। Friends, can we have the next question please? सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि स्टूडेंट्स में कैरेक्टर डेवलपमेंट लाने के लिए स्कूल क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है? विद्यालय का काम अगर चरित्र निर्माण नहीं है तो और क्या है? विद्यालय का काम ही चरित्र निर्माण है, और विद्या या शिक्षा की परंपरा के माध्यम से ही हम बच्चों में और फिर नागरिकों में चरित्र निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि लगातार 1000 वर्षों से भारत में उसको तोड़ा गया, खराब किया गया। आजादी के बाद भी हम चरित्रवान शिक्षा नहीं दे पाए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है जो सबसे ज्यादा जोर चरित्र निर्माण पर दे रही है। हमारे जो नागरिक हैं वो चरित्रवान बने। हमें विश्वास हो कि हमारा देश एक महान देश है और हम जो इसके नागरिक हैं वो भी महान हैं, और यही विद्या की परंपरा हम दोबारा बनाना चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से होगा। मैं प्रोफेसर साहब आपकी जानकारी में ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन हमारे विद्यालयों में भी शुरू हो चुका है। साथ ही हमारे विद्यालय में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पे भी कार्यशालाएं चल रही हैं। और पंचकोश की अवधारणा, जैसे हमारे सब शरीर के अंदर 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनका ज्ञान भी हम बच्चों को दे रहे हैं ताकि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास कर पाएँ।
तो मुझे बड़ी खुशी है कि इससे बच्चों में बहुत बदलाव आ रहा है और बहुत बच्चे अपने आप को उत्तीर्ण कर पा रहे हैं और एक्सेल कर पा रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है उस पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है और वो बच्चों के लिए ठीक कैसे है? हम लोगों ने जो शिक्षा नीति लाई है 2020 में, वो एक दर्शन है। फिलॉसफी में ये ट्रांसलेट नहीं होता है। दर्शन का अर्थ जो है उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैकॉले के मिनट्स ने भारत के चरित्र को ही बदल दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के चरित्र को बदलने की एक नीति है। हम करना क्या चाह रहे हैं? हर व्यक्ति में जो गुण है उसको वो स्वयं उभार करके और उसी में अपना जीवन खुश करे। जैसा कि अभी लक्ष्य जी ने कहा कि आनंदमय कोश का वो अनुभव करे और प्राप्त करे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि हम पूरे समाज में जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्वालिटी एजुकेशन दें और सबको मौका दें कि वो ऐसी विधा में एक्सेल कर सके जिसमें उनकी रुचि है। अभी तक ये नहीं हुआ था। हम केवल अंग्रेजी को प्रोत्साहन देते थे, अब हम भारत की सारी भाषाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम केवल अमीरों के बच्चों को पढ़ाते थे, अब हम गरीबों के, पिछड़े बच्चों को जो गांव में रह गए उनको भी दे रहे हैं। तुमको पता होगा अलंकृत, 11 जून 2014 को प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में ये कहा था कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, वो पिछड़ गए। उनके लिए हमने क्या किया है? उनके लिए ये नीति है ताकि देश का हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन पा सके और हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके, ताकि जो रियली बेस्ट है वही एक्सेल करे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। Thank you for having me here. Friends, we must remember how important education is. It should be available to all. Investing in education is like planting seeds for a better future for everyone. अलंकृत, अब हमारा फेवरेट सेगमेंट आ गया है। क्या दी? अरे अलंकृत, तुम पीकू के बारे में भूल गए? अरे नहीं दी, कैसे भूल सकता हूँ? अलंकृत, मैं तो पीकू की स्टोरीज के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। अरे मैं तो वही सोच रहा था, दी को अभी तक याद क्यों नहीं आया? अरे अलंकृत, मैं पीकू के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? वो हमें वाटर सेव करने के नए नए तरीके जो सिखाती है। तो चलते हैं दी हम पीकू के पास और देखते हैं उसके पास हमारे लिए और कौन सी नई कहानी है सुनाने के लिए। बिल्कुल अलंकृत, चलते हैं पीकू के पास। पीकू, तुम क्या पढ़ रही हो? मैं सोच रही हूँ शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल पीकू, शिक्षा का अधिकार हम सबका होना चाहिए। हाँ, मैं समझती हूँ, इससे कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। पर पीकू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब तो सब बच्चे स्कूल जाते हैं और क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं। अरे अलंकृत मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। सब बच्चे तुम्हारी तरह स्कूल नहीं जाते। आओ चलो, पानी बचाए, जिंदगी बचाए और बच्चों को शिक्षित बनाए। अच्छा, यस पीकू एंड माय फ्रेंड्स, जल का संरक्षण, धरती का रक्षण। जल है जीवन की आस, बचा रहे करो ये प्रयास। हेलो रिंकी। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मैं ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अब हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। हाँ, मैं भी करती हूँ। तुम ऐसे पार्क में घूम रही थी इसलिए पूछा। अरे मैं तो तुम्हारे गार्डन देखने आई हूँ। पर पीकू, ये बताओ, इतनी गर्मी और पानी की किल्लत में तुम्हारा गार्डन इतना हरा भरा कैसे है? हमारे तो सारे पौधे सूख गए हैं। रजत और रीना, तुम अपने पौधों की सही देखभाल करो और खूब पानी दो। हम तो करते हैं, पर पानी की कमी की वजह से सही तरह से उग नहीं पाते हैं। हम तो इसमें वेस्ट वाटर का यूज करते हैं। वेस्ट वाटर का यूज?
वो कैसे? देखो तुम्हारे यहाँ एसी और आरओ तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। तो उनसे निकलने वाले वेस्ट वाटर का तुम लोग क्या करते हो? वो तो खराब होता है ना, हम उसे फेंक देते हैं। अरे वो खराब नहीं होता, उसका इस्तेमाल करा करो हमारी तरह से। तुम्हारी तरह कैसे? हम अपने घर का वेस्ट वाटर बगीचे में यूज करते हैं। अरे वाह, रिजेक्ट हुए पानी का उपयोग कर पौधों को लंबी उम्र दी जा सकती है। ओए, ये उनके विकास के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये तो पता ही नहीं था। देखो प्रिया को कितने अच्छे से बचे हुए पानी का इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, प्रिया का पूरा परिवार इस बचे पानी का क्या क्या इस्तेमाल करता है, ये भी सुनो। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ऐसे ही रिजेक्ट हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी तरह कैसे? बताती हूँ। हम लोग आरओ और एसी से निकलने वाले पानी को अलग अलग बाल्टियों में जमा करते हैं। शांति दीदी, ये एसी से निकला हुआ पानी बाल्टी में रखा हुआ है। फर्श और वॉशरूम की सफाई उसी से करना। रिया बेटा, आरओ से निकला हुआ पानी पौधों में डाल दो। जब पानी ज्यादा जमा हो जाता है तो हम गर्मियों में कूलर और पापा अपनी कार को धोने में इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने घर में पानी का इस तरह उपयोग करेंगे। और हाँ, हम भी अपनी कॉलोनी के लोगों को वेस्ट वाटर के सही इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, ताकि सभी लोग इस पानी का सही उपयोग कर सके। जी आंटी। क्या तुम्हें पता है बच्चों, वेस्ट वाटर का सही इस्तेमाल करके हम अपने भविष्य को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। घर के बगीचों में भी इस पानी का काफी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके काफी फायदे होते हैं। कैसे आंटी? काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) की एक रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि भारत में लगभग 2050 तक वेस्ट वाटर की मात्रा 35,000 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो वाकई काफी फायदेमंद है। हम भी घर घर जाकर सबको इस बारे में बताएंगे। हाँ बिल्कुल, इससे पीने लायक साफ पानी की भी बचत हो सकती है और वेस्ट वाटर का भी खूब अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है। देखो दोस्तों, आप सबको भी प्रिया से कुछ सीखना चाहिए। वेस्ट पानी का सही से उपयोग करना चाहिए, तभी तो आज संजोग कर रखो जल, ताकि बेहतर रहे आने वाला कल। अलंकृत, पीकू ने आज कितनी प्यारी स्टोरी सुनाई ना। मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को उसका मैसेज भी समझ आ ही गया होगा। मुझे भी बहुत मजा आया जो उसने निजामुद्दीन बावली की स्टोरी सुनाई थी। बिल्कुल अलंकृत, थैंक यू पीकू, हमें एवरी वीक इतनी प्यारी स्टोरी सुनाने के लिए। दी, अब हम आज का ईमेल ले लेते हैं। बिल्कुल अलंकृत। फ्रेंड्स, तो ये ईमेल आया है लिटिल जूनियर सुरभि मल्होत्रा की तरफ से। वो लिखती है, I am 10 years old and I love your show. It is amazing how you spread so much information and knowledge in such an entertaining way. The entire cast performs very well. I am in awe of Piku. Thank you so much for such a beautiful email. Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Just Junior. और आप अपने फीडबैक हमें लॉगिन करके सेंड कर सकते हैं tdjustjunior@gmail.com पर, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.